ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ? ਸਿਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ब्रेन ट्यूमर नॉर्मली दो तरह से प्रेजेंट करता है। एक तरीका तो है कि सर में दर्द होता है जो नॉर्मल दवाई से रिस्पॉन्ड नहीं करता, और दूसरा ये है कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से दौरे पड़ने लगते हैं। मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी लाइफ में बढ़ गई है, उसके कारण भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ट्यूमर का इंसिडेंस है, ब्रेन ट्यूमर का इंसिडेंस है, वो बढ़ गया है। जिस तरह ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? नॉर्मली बेटर हैं, जो कॉर्ड से कनेक्टेड हैं वो डेफिनेटली बेटर हैं जो ब्लूटूथ वाले से। ਨੋਰਮਲੀ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। फोर्टिस में जो नॉर्मल ब्रेन ट्यूमर है, अगर हम बोलें ग्लायोमा है या कुछ और सर्जरी है, तो उसका करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा आता है। जो डिस्क है उसको निकाल के यहाँ, जैसे इसमें केज लगाया हुआ है, वो ग्राफ्ट लगा देते हैं और उसको स्क्रू डाल के फिक्स कर देते हैं। द ਅਨਮਿਊਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਨਮਿਊਟ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਟਾਕਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਮ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਦੇ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਹਾਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਗਭਗ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? सारा शरीर जो है वो नर्वस सिस्टम के हिसाब से ही चलता है जी। कुछ नर्व्स सिग्नल भेजती हैं दिमाग को ये बताने के लिए कि हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, ठंडा है, गर्म है, और कुछ नर्व्स वो सिग्नल वहाँ से रिस्पांस वापस लेके आती हैं जो हमारे हाथ पैर की मूवमेंट कराती हैं, पेट की आंतें चलाती हैं, दिल चलाती हैं, फेफड़े चलाती हैं, और चेहरे की भाव बताती हैं। जी। ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਗਨਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਬਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5000 ਸਰਜਰੀਜ਼ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ? ਸਿਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ब्रेन ट्यूमर नॉर्मली दो तरह से प्रेजेंट करता है। एक तरीका तो है कि सर में दर्द होता है जो नॉर्मल दवाई से रिस्पॉन्ड नहीं करता, और दूसरा ये है कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से दौरे पड़ने लगते हैं जी। कुछ ब्रेन ट्यूमर जो पिट्यूटरी या दिमाग के निचले हिस्से में होते हैं उसमें आँखों की रोशनी पे फ़र्क पड़ने लगता है कि किसी एक आँख से या दोनों आँखों से कम दिखाई देने लगता है, खाने पीने में दिक्कत होने लगती है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? कई बार दिमाग के उस हिस्से में ट्यूमर होता है जो नॉर्मली उतना एक्टिव हिस्सा नहीं होता, तो उसमें जब ट्यूमर छोटा होता है तो सिम्टम्स होते नहीं हैं, और जब ट्यूमर बड़ा हो जाता है तभी वो सिम्टम प्रोड्यूस करने लगता है। उस केसेस में ऐसा हो सकता है कि ट्यूमर बड़ा हो जाए और तभी पता लगे। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? नॉर्मली अगर किसी पेशेंट को हेडेक है, उसको नींद अच्छी आती है, मन ठीक रहता है, आँखों की रोशनी में कोई दिक्कत नहीं है, और उसका हेडेक कंटिन्यूस नहीं है, तो नॉर्मली इस तरह के पेशेंट को अधिकतर बार दवाई से आराम होना चाहिए जी। अगर सर दर्द में दवाई से आराम नहीं हो रहा है और उसको दिक्कत बनी हुई है और ये सब सिम्टम हो रहे हैं कि आँखों की रोशनी में दिक्कत है, खाने पीने में कोई दिक्कत है, नींद ठीक नहीं आ रही है,
तो उसके साथ उसको इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। जी। नॉर्मली पहली इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन ही होती है, और उसमें अगर हमें कोई डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ है तो उस केस में फिर एमआरआई कराना चाहिए उसको। जी। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ब्रेन ट्यूमर को मोटे तरह से दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक बिनाइन या ऐसा ट्यूमर जो निकालने के बाद जिसमें ज़िंदगी बहुत लंबी होती है या इनका दोबारा होने का चांस नहीं होता, और दूसरे वो होते हैं जो कैंसरस होते हैं। कुछ तो ऐसे कैंसर जैसे लंग का, लिवर का, पेट के ट्यूमर जो कैंसर मेटास्टेसाइज करके दिमाग में आ जाते हैं, तो वो मेटास्टेसिस बोलते हैं उनको। और कुछ दिमाग के ट्यूमर ऐसे होते हैं जो बार बार एक बार ऑपरेशन करने, रेडियोथेरेपी देने के बाद दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं, जी। तो उनको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बोलते हैं। तो मोटे तौर पे दो ट्यूमर होते हैं, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। जो जी। मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उसमें बार बार होने का रिस्क रहता है। जो बिनाइन ट्यूमर है उसमें अगर पहली सर्जरी अच्छी हुई है और वो पूरी तरह से निकल गया है तो उसमें दोबारा होने का चांस 1% से भी कम होता है। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰਸ ਦੇ? ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ नहीं, ਦੇਖਣ ਨੂੰ आमतौर ਮਿਲਦੇ ਨੇ? से ब्रेन ट्यूमर का कोई डेफिनेट कारण नहीं होता। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा कॉमन होते हैं, पर वो जेनेटिक डिसऑर्डर इतने कॉमन नहीं है। नॉर्मली ब्रेन ट्यूमर स्पॉन्टेनियस रिकरेंस से ही होते हैं, और आजकल जैसे मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी लाइफ में बढ़ गई है, उसके कारण भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ट्यूमर का इंसिडेंस है, ब्रेन ट्यूमर का इंसिडेंस है, वो बढ़ गया है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? बेसिकली जो रेडिएशन है वो सेलुलर लेवल पे, या जो बिल्कुल हमारे शरीर का जो सबसे छोटा हिस्सा है सेल, उसको इफेक्ट करती है। उसमें जेनेटिक चेंजेस होने लगते हैं, उसके कारण फिर वो जब उनकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो वो ट्यूमर का शेप ले सकते हैं। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਫਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਅਰਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? नॉर्मली बेटर हैं, जो कॉर्ड से कनेक्टेड हैं वो डेफिनेटली बेटर हैं जो ब्लूटूथ वाले से, पर ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है उनके फॉर और अगेंस्ट की उसकी वजह से होता है। ठीक है सर, किस तरह ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵਧੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मेरे को लगता है दोनों चीज़ें ही हैं। एक तो अवेयरनेस बढ़ गई है, जब हम पढ़ रहे थे तब सीटी स्कैन, एमआरआई बहुत कॉमन नहीं था। आज से 20 साल पहले चंडीगढ़ में शायद एक एमआरआई सेंटर था, अभी 15-20 हैं। तो जिसको भी थोड़ी भी दिक्कत होती है तो हम जल्दी स्कैन करा लेते हैं। जी। तो एक तो अवेलेबिलिटी है तो डायग्नोसिस जल्दी बन जाता है। दूसरा ये है कि हमारा लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली ख़राब हो ही रहा है, उसकी वजह से भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, और कैंसर के इंसिडेंस से ब्रेन ट्यूमर का इंसिडेंस ही बढ़ता है, क्योंकि कैंसर जब मेटास्टेसाइज करता है तो वो ब्रेन की तरफ जाता है। जी। और तीसरा चीज़ ये है कि जैसे एनवायरमेंटल रेडिएशन है जो एक्सेस में है, जी। सबका मोबाइल यूजेज और ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, उसके कारण भी मेरे को लगता है कि कैंसर का और ब्रेन ट्यूमर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਡ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਏਡ ਕੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਡ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है? नॉर्मली हेड इंजरी में बोलते हैं कि पहला जो घंटा है वो गोल्डन आवर है। तो उसमें अगर पेशेंट की असेसमेंट ठीक हुई है, पेशेंट पूरी तरह से होश में है, उसको कोई उल्टी नहीं हुई, कान नाक गले से खून नहीं गया, कोई बेहोशी नहीं हुई, तब आप उसको लिक्विड्स दे सकते हैं शुरू में। अगर इसमें से कुछ भी हुआ है कि कान नाक गले से खून गया है, बेहोशी हुई है, या कोई दौरा पड़ा है, तो डेफिनेटली पेशेंट को पहले हॉस्पिटल ही लेके जाना चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसका स्कैन वगैरह हो जाए।
एक बार ये क्लियर हो जाए कि उसको दिमाग में कोई चोट नहीं है, या अगर है तो बहुत माइनर है, तभी उसको कुछ खाने पीने के लिए देना चाहिए, जी। अदरवाइज नहीं। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ। जैसे मैंने पहले बताया कि 2 तरह के ब्रेन ट्यूमर है, कुछ बिनाइन कुछ मेलिग्नेंट। जो बिनाइन ट्यूमर है उसमें अगर उसकी लोकेशन ठीक है तो सर्जरी कराने में एडवांटेज है, क्योंकि टाइम के साथ वो ट्यूमर बड़ा होगा, जितना बड़ा ट्यूमर निकालना पड़ेगा उतनी रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, लाइफ रिस्क बढ़ जाएगा। तो जितना छोटा ट्यूमर निकालेंगे उतना बेटर है। दूसरा जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स है उसमें जो ट्यूमर कैंसर से रिलेट होके कहीं और का कैंसर दिमाग में है, उसमें सर्वाइवल बहुत अच्छा नहीं होता आमतौर से। उसमें नॉर्मली 1 साल के आसपास सर्वाइवल होता है। पर जो दिमाग के अपने ट्यूमर्स हैं उसमें ग्रेडिंग होती है ट्यूमर्स की 1 से 4 तक। जो ग्रेड 4 के ट्यूमर्स हैं उसमें आमतौर से सर्वाइवल 1.5 साल के करीब होता है। ग्रेड 3 में नॉर्मली 3-1 साल का सर्वाइवल होता है। ग्रेड 2 में नॉर्मली 10 साल के आसपास लाइफ टाइम होता है। और जो ग्रेड 1 है उसमें लंबा सर्वाइवल होता है, अगर पूरा रिसेक्ट हो जाए तो 15-20 साल भी निकल। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪਾਈਨ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये जैसे सर्वाइकल स्पाइन का मॉडल है, इसमें आप देखेंगे कि ये आगे जो वर्टिब्रा है, ये चारों तरफ से स्पाइनल कॉर्ड जो यहाँ से गुजरती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और हर लेवल पे एक नस बाहर निकलती है जो हाथ पैर को चलाती है, हमारे फेफड़ों छाती की मसल्स को चलाती है और पैरों को चलाती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब ये डिस्क या कोई ट्यूमर होता है जो इस नस को दबाता है तो वो सिम्टम प्रोड्यूस करता है। और जब ये हम डिस्क निकालते हैं तो आजकल बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप आगे से डिस्क निकाल सकते हैं, गर्दन में आगे से इंसिजन दे के, और उस डिस्क की जगह आप केज या प्लेट लगा के उसको फिक्स करते हैं। इसे इट इज़ रीजनेबली, और अदर आई से इट इज़ वेरी सेफ सर्जरी। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन कॉम्प्लिकेशन का चांस 1-2% से ज़्यादा नहीं होता जी। और इसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से जो हमारी ये कमर की हड्डी का मॉडल है, इसमें जैसे पीछे से हमने एक हड्डी निकाल दी है, ये नस एक्सपोज कर दी है, तो जब पीछे से दबाव होता है तो हम पीछे से नस निकाल देते हैं, हड्डी हटा देते हैं, और जो डिस्क है उसको निकाल के यहाँ जैसे इसमें केज लगाया हुआ है वो ग्राफ्ट लगा देते हैं और उसको स्क्रू डाल के फिक्स कर दें। हर केस में ये स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं होती, पर क्योंकि मॉडल है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे स्क्रू भी इसमें लगाया जा सकता है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सेफ सर्जरी। इसमें भी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क 1-2% से ज़्यादा नहीं होता, बट इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। जी, थैंक यू सर। गल करते हैं कि जिस तरह बार बार एक गल की जा रही है कि ब्रेन का जोड़ा विषय है या नर्व्स का विषय बहुत ही संजीदा विषय है। जाते जाते साडे दर्शकों को मैसेज देना, एक डर कढ़ के जाना है कि अगर परमात्मा वालों तुहानू ये बीमारी लग गई है तो इसका इलाज संभव है। नहीं, ब्रेन ट्यूमर का इलाज डेफिनेटली संभव है। और आप ऐसे समझिए कि कोई भी ब्रेन ट्यूमर या कोई भी कैंसर जब शरीर में होता है तो वो किसी के कहने से या बिना किसी इलाज के तो रुकने वाला है नहीं। तो जितना बड़ा कैंसर या जितनी एडवांस स्टेज में हम डॉक्टर के पास जाएंगे उतना ज़्यादा दिक्कत होगी उसके इलाज में, उतना कम चांस हो जाएगा कि हम उससे पूरी तरह से रिकवर कर पाएँ। तो जो भी ट्यूमर है ब्रेन में, उसका वो जितना छोटा हो, जितना पहले पता लगे, उतना बेहतर इलाज संभव है। और बहुत बार इलाज बिना सर्जरी के भी हो पाएगा। जितना बड़ा ट्यूमर हो जाएगा उतना चांस ज़्यादा होगा कि आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा, रेडियोथेरेपी या ये सब भी साथ में कराना पड़ेगा। जी सर, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ? नहीं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हमने कोई ब्रेन ट्यूमर किया जो मेलिग्नेंट या ग्रेड 4 ट्यूमर था, उसको निकालने के बाद जैसे एक यंग फीमेल जो नालागढ़ से आई थी, बहुत साल पहले ऑपरेट किया था, हमें लगता था कि 1.5 साल ही निकलेगा उसकी ग्रेडिंग के हिसाब से, पर उस पेशेंट ने करीब 8-9 साल वो ठीक रही, उसके बाद दोबारा उसको हुआ वो
तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वो 100% सच ही होने वाला है। हम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देते हैं वो एक्चुअली एक एवरेज है जी कि अगर हम 100 पेशेंट ट्रीट करते हैं तो मोटा मोटा 50% पेशेंट इस लाइफ स्पैन में रहेंगे, उससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है जी और जो बिनाइन ट्यूमर ऑपरेट करते हैं उसमें तो ज़िंदगी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाती जी। है। एक ट्यूमर जैसे हमने करीब 20 साल पहले ऑपरेट किया था, वो पेशेंट आज भी आता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी तो उस तरह के पेशेंट को तो ट्यूमर का सर्जरी करानी ही चाहिए अगर जी। डॉक्टर उसको रिकमेंड कर रहा है तो। ਨੋਰਮਲੀ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਜਰੀ ਤੇ? फोर्टिस में जो नॉर्मल ब्रेन ट्यूमर है, अगर हम बोलें ग्लायोमा है या कुछ और सर्जरी है, तो उसका करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा आता है सर्जरी का और 4-5 दिन रुकने का। जी और ये वेरिएबल होता है कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे गया तो खर्चा बढ़ेगा, अगर वेंटिलेटर पे नहीं गया और आईसीयू स्टे कम हुआ तो इससे कम में भी हो जाती है सर्जरी। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अधिकतर मतलब मैं ये कहूँगा कि 100 में 90 लोग इसमें से निकल जाएंगे। ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਰਜਰੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? नहीं, सर्जरी में स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ता है, जैसे हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ता है। उसके 2 कारण होते हैं कि एक तो हमारी मूवमेंट कम हो जाती है, दूसरा खान पान थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, हम ज़्यादा भारी चीज़ें खाते हैं जिसको हम समझते हैं अपनी ज़ुबान में जी। कि घी चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। दूसरा नॉर्मली बीपी भी थोड़ा सा बढ़ता है इस सीज़न में। तो एक तो जो ब्लड प्रेशर है उसका ध्यान रखना चाहिए, जो जिन लोगों को है या वो उस तरह की प्रोन है जो इस बीमारी से, और इनके कारण ही बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज का इंसिडेंस बढ़ जाता है। ਜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਬਰੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਐਫ ਫਾਰ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਏ ਆਰਮ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸ ਫॉर ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਟੀ ਫॉर टाइम कि टाइमली जाना चाहिए। मतलब ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? नहीं, ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है आजकल, और जो ये फास्ट करके हम बोलते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल यू शुड रीच द हॉस्पिटल। 4-4.5 घंटे में अगर पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी संभावना होती है कि आपका इलाज पूरी तरह से होगा और आपकी रिकवरी कंप्लीट होने के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। एक बार हम 6 घंटे का बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो फिर रिकवरी के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि डैमेज तब तक परमानेंट हो जाता है जी और नसों को खोलने का जो जरिया है एंजियोग्राफिकली, उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। जी तो जितनी जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचे, एक चीज़ तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ख़ास तौर से सर्दियों में बीपी और शुगर का कंट्रोल जितना अच्छा रख सके पेशेंट उतना अच्छा है, उतना कम चांसेस हो जाएंगे ये सब होने के। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਪੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਨਰਵ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਲੌਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਰਵ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। MRI ਸਕੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਮਰੇਜ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫਟ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ? हाँ जी, जब ब्रेन की नस फट जाती है तो उसमें ये डिपेंड करता है कि वो हेमरेज किस साइज की है। जी अगर हेमरेज छोटी है, उसका टोटल वॉल्यूम 20 ml के करीब है, तो नॉर्मली सर्जरी की जरूरत नहीं होती, वो दवाई से ही मैनेज हो जाता है। जी अगर वॉल्यूम 50 ml को एक्सीड करता है तभी उसमें सर्जरी की जरूरत होती है। जी और हेमरेज नॉर्मली ब्लड प्रेशर बढ़ने से ही होता है अधिकतर लोगों को, कुछ लोगों में एन्यूरिज्म या अदर कॉज हो सकता है। जी ਸੈਰੀਬਰਲ ਐਨੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि सेरिब्रल एन्यूरिज्म बेसिकली जो हमारे दिमाग की खून की नाड़ियाँ हैं उसमें गुब्बारा टाइप की एक एबनॉर्मेलिटी बन जाती है, जो गुब्बारा ब्लड प्रेशर बढ़ने से या उसकी दीवार या उसकी गुब्बारे की वॉल जब कमज़ोर हो जाती है तो वो कहीं से लीक कर जाता है, उसके कारण एन्यूरिज्म फटने का डर रहता है।
ਜੀ ਸਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਗੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚ सकती है एज अर्ली एज पॉसिबल? ब्रेन हेमरेज में भी जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे उतना अच्छा है, क्योंकि उसमें प्राइमरी टारगेट इज कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। जी, जब तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होएगा हेमरेज रुकेगी नहीं, हेमरेज फर्दर बढ़ सकती है। तो फिर उसको अगर हो सकता है छोटी हेमरेज में सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी, और अगर ਹੈਮਰੇਜ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ किसी हद तक क्योर कर सकिए? मेरे को लगता है कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ब्लड प्रेशर और शुगर ठीक रहना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, दिन में कम से कम 1 घंटा या 45 मिनट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट होते हैं जैसे शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये साल में कम से कम 1 बार ज़रूर चेक कराएं, जिससे ये सब चीज़ें ठीक रहें, क्योंकि यही कारण है। दूसरा स्मोकिंग, अल्कोहल, इसको लिमिट करें या ना करें तो और भी अच्छा है। इन सब चीज़ों से ही स्ट्रोक, हार्ट अटैक ये सब होता है, और वही हमारी मॉर्बिडिटी का कारण है। ਜਦੋਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਔਰ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं पिछले 15-20 साल में। जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे तो ऑपरेशन कुछ 8 घंटे 10 घंटे इस तरह से भी चलते थे, हर चीज़ हाथ से ही करनी पड़ती थी। अब बहुत सारे इक्विपमेंट अवेलेबल है जिससे हम ड्रिल से ही बोन काट लेते हैं, तो उसमें टाइम बचता है। खोलने बंद करने में दिमाग को टाइम कम लगता है। अब न्यूरो नेविगेशन अवेलेबल है बहुत सारी जगह पे, जिससे इंसीजन छोटे हो गए। जो कट हम लगाते हैं ट्यूमर निकालने के लिए वो छोटा हो गया है, तो जब कट छोटा होगा तो उसको खोलने और बंद करने में भी टाइम लगेगा। ऐसे ही कूसा एक अलग इक्विपमेंट अवेलेबल है जिससे हम अल्ट्रासोनिक सक्शन करके ट्यूमर निकालते हैं, उससे ब्लीडिंग कम होती है। तो ब्लीडिंग कम होती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट कम है, सर्जरी फास्टर हो जाती है। इन सब चीज़ों से सर्जरी का टाइम तो डेफिनेटली पहले से मेरे हिसाब से कम आधा हो गया ਜੀ पिछले 15-20 साल में। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ।